إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال الله تعالى في موضع آخر فصل لربك وانحر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات، عبادات و بندگی اس اللہ رب العزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو میرا اور آپ کا، ہم سے پہلے والوں کا، ہمارے بعد آنے والوں کا خالق دو جہاں، مالک ارض و سما ہے. اللہ احد الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے. وہ علی کل شیء قدیر ہے. وہ سب سے بے مثال تھا، بے مثال ہے، بے مثال رہے گا. وہ ہمیشہ سے با کمال تھا، با کمال ہے، با کمال رہے گا. اس کی ذات میں برابری کرنے والی کوئی ذات نہیں. وہ اکیلا مالک الملک ہے. ہماری زندگیاں اس کے قبضے قدرت میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اور آپ صحت مندی کے ساتھ اللہ کے گھر میں اول وقت میں جمع ہوئے ہیں. ثانیاً درود نازل ہو سارے نبی اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلات کے بعد آج 23 جون 2023 23 جون 2023 بروز جمعہ مسجد سلفیہ اہل حدیث ہندوپور میں میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی ضلع بلہاری کرناٹک آپ کے سامنے قربانی کیا ہوتی ہے، قربانی کے کیا احکام و مسائل ہیں، اس عنوان پر قرآن اور حدیث کے روشنی میں لب کشائی کرنے کے لیے کھڑا ہوں. میرے بھائیوں، آپ میں سے جو لوگ 2 رکعت سنت مؤکدہ نہیں پڑھے ہیں وہ پڑھ کر بیٹھے ہیں، اور جو پڑھ لیے ہیں وہ ذرا آگے ہٹ کر بیٹھے. یہاں پہلی صف ابھی خالی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر آپ کو پتہ چل جائے پہلی صف کا کیا فضیلت ثواب ہے، تلوار لے کر جنگ کرنے لگو گے کہ میں بیٹھوں گا آگے صف میں، میں بیٹھوں گا. اس جنگ کو چھڑانے کی خاطر چٹیاں لکھ کر تم قرآن اندازی نکالو گے، بھئی لڑو مت،
चिट्ठियां डालेंगे, जिसका नाम निकलेगा वो पहली सफ में बैठेगा। इतना ज्यादा सवाब होता है पहली सफ का। आप अगली सफों को पुर करने की हमेशा कोशिश करें। मेरे भाइयों, हम लोग अशरे जिलहिज्जा से गुजर रहे हैं। आज 3 जिलहिज्जा है, जिलहिज्जा की 3 तारीख। अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से ये अय्याम इतने खुशनसीब अय्याम हैं, इतने प्यारे मकबूल और मोहतरम अय्याम हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला को साल के 364 दिनों में इन अय्याम से बढ़कर कोई और दूसरे अय्याम नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, वलल जिहाद या रसूलल्लाह, क्या अल्लाह की राह में जिहाद करना भी इन 10 दिनों के बराबर नहीं है? तो नबी ने कहा, वो आदमी जो अपने माल को लेके निकला, अपनी जान को लेके निकला, अल्लाह की राह में माल भी कुर्बान कर दिया, जान भी कुर्बान कर दिया, वो इन 10 दिनों में नेकियां करने वाले के बराबर आ सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता। इतना ज्यादा सवाब है इन 10 दिनों में। कोई स्पेशल इबादत नहीं है इन 10 दिनों की। इन 10 दिनों में वही नमाज है, वही सुबह शाम के अस्कार हैं, वही कुरान की तिलावत है, वही सदका और खैरात। लेकिन इन 10 दिनों की कसम अल्लाह खाता है सूरह फजर में, वल फज्र व लयालिन आश्र, कसम है इन 10 दिनों की, कसम है 10 रातों की, वश्शफ़ी वल वतर, और कसम है शफक की, कसम है वतर की। वितर कहते हैं 9 जिलहिज्जा को, शफक कहते हैं 10 जिलहिज्जा। 9 जिलहिज्जा यौमे उखूफ अरफा है, जिन दिन अल्लाह ताला जहन्नम से सबसे ज्यादा लोगों को आजाद करता है। साल के 364 दिनों में अल्लाह ताला किसी दिन लोगों को इतने जहन्नम से आजाद नहीं करता जितने 9 जिलहिज्जा को यौम अरफा के दिन अल्लाह ताला बंदों को जहन्नम से आजाद करता है। क्योंकि हमारा अल्लाह गफूर रहीम है, रहम ज्यादा करता है, लोगों को माफ ज्यादा करता है। अरफात के मैदान में जब बंदा खड़े होकर अल्लाह से कहे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, अल्लाह उसे गुनाहों से पाक कर देता है। अल्लाह के नबी कहते हैं, वो आदमी गुनाहों से ऐसे पाक होता है जैसे उसकी मां ने उसी दिन उसे जन्म दिया। और अल्लाह ताला हज्जे मबरूर का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं रखा। उखूफ अरफात में रहने वालों को अल्लाह ताला ये वादा किया है, अरफात के मैदान के बाहर रहने वालों को रोजा रखने का हुक्म दिया है। लेकिन इस कंफ्यूजन में मत रहना। उखूफ अरफा हम इंडिया वालों के लिए 8 जिलहिज्जा को पड़ता है, 9 जिलहिज्जा को वहां पर हज का दिन चलता रहता है, 10 जिलहिज्जा। मेरे भाइयों, जहां आप चांद देखे हैं, इसी चांद देखने के मुनासिबत से आप 9 जिलहिज्जा को उखूफ अरफात की नीयत से एक दिन का रोजा रखेंगे। अगर आपके दिल में ज्यादा कंफ्यूजन है, आप चाहे तो 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 दिन के लगातार इन अय्याम में रोजे रख सकते हैं। सुनन नबी दाऊद की सही हदीस है, जिसे अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया है। अल्लाह ताला के पास रहम करने की सिफत ज्यादा है। अल्लाह के पास गुस्सा भी है, लेकिन गुस्सा बहुत कम है। रहमतें अल्लाह की बहुत ज्यादा है। इन 10 दिनों में 9 जिलहिज्जा है, जिसकी कसम अल्लाह खाता है। इन 10 दिनों में 10वां जिलहिज्जा है, जिसे यौमुन नहर कहते हैं, कुर्बानी का दिन। इस दिन के अमल में अल्लाह के पास खून बहाने के अमल से बढ़कर कोई अमल नहीं। इंसान जानवर का, हलाल जानवर का खून बहाए। जिन जानवरों के खून बहाने का हुक्म अल्लाह ने सूरह अनआम में दिया है, 8 जानवर, 4 जानवर अपनी फीमेल को मिलाकर 8 जानवर, ऊंट, ऊंटनी, गाय, बैल, बकरा, बकरी, छेला, छेली। ऊंट, गाय, बकरा, छेला, ये 4 जानवर अपने फीमेल को मिलाने के बाद 8 जानवर। इन 8 जानवरों की कुर्बानी उस दिन खून बहाने से बढ़कर अल्लाह की निगाह में कोई दूसरी कुर्बानी अल्लाह को उतनी मकबूल और मुहतरम नहीं। चाहे तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करो, वो भी अल्लाह को उतना पसंद नहीं जितना खून बहाने का अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, एक गोरी बहन से शादी करने के मसले में झगड़ा पैदा हो गया, हाबिल खाबिल के बारे में। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारे 2 बेटों से कहो अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी दे, जिसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल करेगा वो हाबिल की बहन गोरी बहन से निकाह करेगा। दोनों ने कुर्बानी दी, एक जानवर को ज़बह किया हाबिल, खाबिल
खेती बाड़ी करके अनाज मैदान में रख दिया, अल्लाह ने जानवर काट कर जो मैदान में रखे थे, आसमान से आग आकर उस जानवर को जलाकर राख कर दी। मतलब अल्लाह ने उसकी कुर्बानी कबूल की, और जो ढेर सारा अनाज दुनिया भर का माल मता लगाया था, अल्लाह उसकी कुर्बानी कबूल नहीं किया। अल्लाह को दुनिया की सारी दौलत एक तरफ, जानवर ज़बा करने का अमल एक तरफ। अल्लाह को सबसे ज्यादा अमल जान कुर्बान करने की कुर्बानी सबसे ज्यादा अल्लाह को मकबूल और मोहतरम। लेकिन यह कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए, अल्लाह के सिवा किसी गैरुल्लाह के लिए नहीं होना चाहिए। क्योंकि सूरह नाम आयत नंबर 162, 163 अल्लाह कहता है क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला के अर्श के दाएं जानिब अंबिया, सिद्दीकीन, सालिहीन, शुहदा, जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के सामने दाएं हाथ में नामे अमाल लेकर जन्नत में जाने वाले दाएं जानिब खड़े रहेंगे। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहा, तमाम अल्लाह के औलिया, अल्लाह के नेक मुत्तकी जन्नत में जाने वाले दाएं हाथ में नामे अमल लाकर अल्लाह के अर्श के दाएं जानिब खड़ेंगे। पीठ के पीछे लेफ्ट हाथ में, बाएं हाथ में नामे अमल लेने वाले अल्लाह के अर्श के बाएं जानिब खड़ेंगे। अल्लाह के अर्श के दाएं जानिब खड़ने वालों में अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के बिल्कुल किनारे मुकाम महमूद पर शिफात का झंडा लिए हम सब के नबी, कायनात के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सरवरे कौनैन सैयदुल सकलैन खातिमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम महमूद पर शिफात का झंडा लिए खड़े रहेंगे। उस दिन अल्लाह ताला हमारे नबी के जबान से कुरान की आयत पढ़कर सुनाने लगाएगा। हमारे नबी आयत पढ़ेंगे, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ लोगों, मैं दुनिया में तुमको नमाज पढ़ाने का हुक्म देता था, कुर्बानियां करने के बारे में कहता था, मैं भी नमाज पढ़ता था, मैं भी कुर्बानियां देता था। सुनो, इन्ना सलाती मेरी नमाज, व नुसुकी मेरी कुर्बानी, व महयाया व ममाती मेरा जीना मेरा मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के लिए था। मैं इसी अल्लाह के लिए नमाजें पढ़ता था, इसी अल्लाह के लिए कुर्बानियां देता था, इसी अल्लाह के लिए जीता था, इसी अल्लाह के लिए मरता था। हम सब की जिंदगियां भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के लिए होना चाहिए। हमारी नमाजें अल्लाह के लिए, हमारी कुर्बानियां अल्लाह के लिए, हमारा जीना अल्लाह के लिए, हमारा मरना अल्लाह के लिए। अगर कोई शख्स नहीं, ये बकरा फलां दरगाह के लिए, ये बकरा फलां पीरान के लिए, ये दुम्बा हमारे अब्दुल क़ादिर जिलानी के 11वीं के लिए अगर कोई करता है तो यह नाजायज है, अल्लाह ने इसकी इजाजत नहीं दी। नबी अलैहिस्सलाम कहते मन ज़ुबिह लि गैरिल्लाहि फ़क़द अशरक, जो आदमी गैरुल्लाह के लिए जानवर ज़बा करे वो शिरक करता है। अब आप कहते होंगे महबूब सुबानी के नाम पर काटना यह कोसा गलत है। हम महबूब सुबानी का नाम नहीं लेते, हम बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहते हैं, लेकिन उनके नाम की नजर नियाज करते हैं, ये भी जायज नहीं है। जब हमारे नबी के नाम का नजर नियाज करते हुए जानवर ज़बा करना जायज नहीं है, तो अब्दुल क़ादिर जिलानी ये तो उम्मत मोहम्मदी है, एक अल्लाह के नेक बंदे हैं, भला उनके नाम से कुर्बानी कैसे हो सकती है? समझने वाली बात है। मेरी बातें हनफी भाइयों को कड़वी लगती है, क्या भाई ऐसा बोलती तोंडे, हकीकत यही है। अल्लाह के सिवा न किसी पीर के लिए, न किसी पैगंबर के लिए, न किसी रसूल के लिए, न किसी फरिश्तों के लिए, दुनिया के किसी हस्ती के लिए जानवर, उनकी रजामंदी है, उनके नजर नियाज के लिए जानवर ज़बा करना जायज नहीं है। अल्लाह ही के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रजा के लिए हमारी कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर होना चाहिए। मेरे भाइयों, अगर हम कुर्बानी देने वाले नहीं बने, इस्लाम नाम है कुर्बानियों का, इस्लाम नाम है कुर्बानियों का, वक्त की कुर्बानी, जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, हर चीज की कुर्बानी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जुमा का दिन है, आप में से 75% लोग, अभी 25% लोग बाद में आए, 75% लोग अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मेंबर पर चढ़ने से पहले आप लोग यहां आए थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सुनन नबी दाऊद जामी तिर्मिज़ी की हदीस में फरमाते हैं कि जो शख्स अपनी वक्त की कुर्बानी देकर मस्जिद में अव्वल वक्त में दाखिल होगा, अल्लाह उसे ऊंट की कुर्बानी का सवाब देगा। जो दूसरे नंबर पर मस्जिद में आएगा, अल्लाह उसे गाय की कुर्बानी का सवाब देगा। तीसरे नंबर पर जो आएगा, बकरे की कुर्बानी, दुम्बे की कुर्बानी का सवाब देगा। चौथे नंबर पर जो आएगा, एक मुर्गे की कुर्बानी, मुर्गी की कुर्बानी का सवाब देगा। पांचवें नंबर पर जो आएगा, अंडे की कुर्बानी का सवाब देगा। उसके बाद आने वालों का नाम
फरिश्तों के लिस्ट में चढ़ेगा, फरिश्ते लिख लेंगे ये जुम्मा में आए थे, अल्लाह इनको जुम्मा का सवाब दे। जैसे खतीब मेंबर पर चढ़ेगा उसके बाद जो भी आएंगे उनका नाम फरिश्तों की लिस्ट में नहीं चढ़ेगा। अब आप लोग ना ऊंट खरीदे, ना ऊंट ज़बा किए, ना ऊंट तकसीम किए, लेकिन अपनी वक्त की कुर्बानी दी है। अल्लाह आपको ऊंट की कुर्बानी दिया, आप वक्त की कुर्बानी दे के मस्जिद में आए, अल्लाह आपको गाय की कुर्बानी का सवाब दिया। आप वक्त की कुर्बानी देकर आए, अल्लाह आपको दुम्बे की कुर्बानी का सवाब दिया। आप वक्त की कुर्बानी देना सिर्फ जुम्मा को नहीं, रोजाना दिन में 5 वक्त की नमाज के लिए पांचों टाइम 15 से 20 मिनट का टाइम, फजर की नमाज, ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, ईशा की नमाज, 5 नमाजों के लिए अगर आप 15-15 मिनट लगाएंगे, 1.25 घंटे से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। इतना वक्त तो आपको देना ही पड़ेगा। यह वक्त की कुर्बानी है। अल्लाह आपसे कुर्बानियां मतलूब करता है। नहीं भाई हमें खाली दावा करती है, हमें सल्फिया, हमें पक्के अहले हदीसा, हमें कुरान हदीस पर चलने वाले, हमें नबी के नक्शे कदम पर चलने वाले, हमें सहाबा के रास्ते पर चलने वाले, खाली मुंह के दावे हमारे, जबान के दावे हमारे, लेकिन अमली मैदान में ना हमारी जिंदगियों में नमाज है, ना हमारे पास वक्त की कुर्बानी देने का जज्बा है। कोसी तो मस्जिद तामीर हो रही, कान तो भी मदरसा बन रहा, एक यतीम गरीब मरीज है, ऑपरेशन होने वाला, उसे क्या तो भी अल्लाह के रास्ते में दो, यतीमा के वास्ते दो, मस्जिद के वास्ते दो, मदरसे के वास्ते दो। पतली गली से चोरा निकले सका कंजूसा मन को निकल जा रही, 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में खैरात नहीं दे रहे। ना वक्त की कुर्बानी, ना माल की कुर्बानी, ना तुम्हारे तन मन धन की कुर्बानी नहीं देते, खाली दावे करती तो 1 नंबर का मुनाफिक बोलती, उसे मुनाफिक। खाली दावे करता, कुर्बानियां नहीं देता। अरे तुम्हारे से अच्छे दावे करने वाले नबी के जमाने के मुनाफिकान थे। उन्होंने नबी के सहाबा के सफा में खड़े होकर नमाज़ें पढ़ते थे। हमें हमारे भाइयों के बीच में खड़ोक नमाज़ें पढ़ती, मुनाफिकां सहाबा के साथ खड़ोक नमाज़ें पढ़ते थे। लेकिन जब मैदान जंग में गज़वे बदर के लिए, गज़वे उहद के लिए मदीने से निकलते, बदर के मैदान में जाने से पहले, उहद के मैदान में पहुंचने से पहले मुनाफिकां अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल और इनके चेले चिपटे बहाने कर को, मैं बीमार, मेरे पेट में दर्द है, हमारे अम्मा बीमार, मेरी बीवी बीमार, हमारे घर में वो कामा है, मैं अभी चाह जाता हूं, सबा आ जाता हूं, ऐसा बोलने को पीछे गली से निकल जाते। 250 से ज्यादा मुनाफिकान थे, 250 से ज्यादा दावे करते थे। कुर्बानी देने का टाइम आया तो पतली गली से निकल जाते थे। अल्लाह ने इनके बारे में क्या कहा? इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, सूरह निसा 145 नंबर आयत। अल्लाह ने कहा ऐसे मुनाफिकों को हम जहन्नम के सबसे निचले गड्ढे में डालेंगे। माल की कुर्बानी का टाइम आया, नबी ऐलान करे, है कोई सहाबी जो अपने माल की कुर्बानी दे? अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ऐलान कर रहे, गज़वे बदर के लिए, गज़वे खैबर के लिए, गज़वे खंदक के लिए। साहबा इकराम, अल्लाह के नबी हमारी तरफ से ये, हमारी तरफ से ये, हमारी तरफ से ये लाने वाले साहबा इकराम देते जा रहे हैं, माल की कुर्बानी करते जा रहे हैं। लेकिन मुनाफिका 1 रुपया नहीं देते थे। वापस कौन तो भी जंग जीत को आए तो माल गनीमत जब तकसीम होता था, वो माल गनीमत फ्री में लेने के वास्ते क्यों में जाको खड़ते थे। ऐसे मुनाफिकों को अल्लाह के नबी ने कहा ये जहन्नम के निचले गड्ढे में जाएंगे। ना माल की कुर्बानी देने का जज्बा है, खाली माल लूटने का जज्बा, ना जान की कुर्बानी देने का जज्बा है, खाली अपने आप को दावे करने का जज्बा। हमें पक्के तुम्हारे साथ किसी काम के नहीं, जबान के दावे अल्लाह के पास किसी काम के नहीं। अल्लाह क़यामत के दिन ये नहीं पूछता तुम्हारे में कौन था जो जबान से बहुत ऊंचे दावे करया, लंबे ऊंचे दावे करया। कौन है आओ जन्नत में नहीं बुलाता। कौन वो शख्स है जो अमल करया, जो कुर्बानियां दिया, मेरी रजा की खातिर तन की, मन की, धन की, वक्त की, जान की, माल की कुर्बानियां लाओ। कुर्बानियां देने वालों को अल्लाह बुलाएगा सामने। क्या समझते हैं आप कुर्बानी देना? मेरे भाइयों, हजरत खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सूली पर चढ़ाया गया। इनको पूछते हैं खुबैब कोई तमन्ना है क्या? हाँ, 2 रकात नमाज पढ़ने की तमन्ना है। उनको छोड़ दिया गया, 2 रकात नमाज पढ़े उन्होंने, बाद में आंखों सूली पर खड़े हो गए। बोलती हैं वो 2 रकात मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज,
میری زندگی کے آخری سجدے, میرے دل میں تمنا آئی میں لمبے لمبے سجدے کروں, اللہ یہ ماتھا تیرے لیے آخری بار ٹکا رہوں نا اللہ زمین پر, یہ سجدے تیرے لیے آخری بار کر رہوں نا اللہ. جی جان بھر کو جوش و جذبے سے لمبے لمبے سجدے کرنے کی تمنا آئی, لیکن پھر خیال آیا تم لوگ کہیں ہنسو نا, تمہیں کہیں ہنسے نا کہ دیکھو موت کے ڈر سے کتنے لمبے لمبے سجدے کر رہا انہیں, تمہیں ہنسنا نہیں گا تو, تمہیں خوش ہونا نہیں گا تو چھوٹے سجدے کر لے اڑ گیا. میرے بھائیوں, سولی پر چڑھایا گیا, تیروں سے مار مار کر دھیرے 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 ان کے بدن سے خون نکال کر تڑپا تڑپا کر ان کو شہید کر دیا گیا. قربانی کسے بولتی ہے ہمیں جانتے بھی نہیں, ہمیں دیکھے بھی نہیں. ہم نے 21 قربانی معلوم, بکرے کاٹنا, خوب ڈلیاں کھانا, بریانی نباک مارنا, خبابان ٹنگا لینا, دعوتان دینا, ہو گئی قربانی. اس سے ہمیں جانتی سے قربانی. ارے قربانی کسے بولتی ہم نہ معلوم نہیں. اللہ کے راستے میں جو قربانیاں اسلاف نے دی ہیں اسے بولتی قربانی. اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ 264 نمبر آیت, 264 نمبر آیت میں کہتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. سورہ بقرہ کی 243 نمبر کی 243 نمبر کی آیت, 240 پر 3 نمبر کی آیت ہے. اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا معلوم؟ یہ آیت حضرت حزقیل علیہ السلام کے قوم کے بارے میں نازل ہوئی. کون انہوں حزقیل علیہ السلام بولے تو بنی اسرائیل کے ایک نبی. اللہ تبارک و تعالی اس نبی کے قوم کو کہا تھا سامنے بڑی لشکر جرار ہے, اسلام کو مٹانے کے لیے آئی ہے, تم لوگ اپنی جان کی قربانی دیتے ہوئے آگے بڑھو, جاؤ جان کی بازی لگاؤ. اللہ نے حکم دیا. یہ لوگ کیا کرے, کون لڑتا جی, لڑے تو ہمیں مر گئے تو ہماری جورو بیوہ ہو جاتی, بچے یتیم ہو جاتے, ہم نہ منظور نہیں. ہمیں لڑیا ماری کرنے آئی نہیں, ہم نہ یہ سبھی جنگ جہاد بولنا نہیں, ہمیں لڑتے نہیں, ہمیں جان کی قربانی دیتے نہیں. ایسا بولنے کو نبی سامنے کھڑے ہیں, اعلان کر رہے ہیں آؤ اپنے دروازوں سے نکلو, جہاد کے لیے جانا, جنگ کے لیے جانا, جان کی قربانی دینے نکلو. اللہ کے نبی حزقیل علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں, لیکن یہ چورا, بزدلا, منافقہ, خالی دعوے کرنے والے پھچے کے دروازے سے نکل کو بھاگ کو چلے گئے. سامنے دروازے سے نکلے تو نبی کھڑے ہوئی, بلا لے جاتی جنگ میں, پھچے کے دروازے سے نکلے بھاگ کو چلے گئے. جان قربانی دینے کی ضرورت نہیں, جنگا میں جانے کی ضرورت نہیں. یہ پورے قبیلے والے پھچے کے دروازے سے نکل کو ایک میدان میں جمع ہو کو بھاگ گئے. اللہ کے نبی سامنے انتظار کر لے کھڑی, دروازے کھلتی آتی, میری امت آتی, جنگ کرتی, کون بھی نہیں آئے. اللہ دیکھ رہا, پھچے دروازے سے نکل کو بھاگ کو جاری سے اللہ دیکھ رہا. اللہ کیا کرے, فخا وہم الوف حذر الموت, اللہ بولتا ہے یہ لوگ موت سے ڈر گئے, موت سے گھبرا گئے, ہمیں کہیں مرنا کہیں کٹنا, یہ تکلیف سے بچنے بھاگ گئے. اللہ نے کیا کہا, فقال لهم اللہ موتوا, ان سب لوگوں کو زمین پھاڑ کو اللہ زمین کے اندر دھسا ڈالا. موت سے ڈر رہی, موت تمہاری میرے ہاتھ میں ہے, تمہاری زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے. وہ موت وہ زندگی بچانے بھاگ رہی تمہیں, ایک جھٹکے میں تم نہ مار ڈال تو یہاں اللہ زمین چیرے, پورے کے پورے بزدلا منافقان کو زمین کے اندر دھسا ڈالا, دھسا ڈالا. اب یہ منظر ہوا یہاں بنی اسرائیل میں. موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام اپنے قوم کو لے کے نکلے, دریائے نیل آر پار ہو گئے. دریائے نیل سے نکلنے کے بعد منا سلوا آسمان سے اتریا سو ان کو کھانے. نخرے بنی اسرائیل کے, موسیٰ علیہ السلام تمہارے اللہ کا کلمہ پڑھ کو گوان چھوڑ کو آئی, ہمیں آسمان سے دھوپ لگ رہی, ہم نے اللہ کو بولو دھوپ ہٹاؤ گا نا. یا اللہ میری قبیلے کو گرمی لگ رہی گا, اللہ ذرا چھاؤں دے. اللہ بادلان کو لا کو سورج کے آڑے کھڑا کرتا تھا, چھاؤں بناتا. اے موسیٰ پیاس لگ رہی ہے, اللہ کو بولو پانی کا انتظام ذرا آگے جائیں گے, چشمے ملتے, یہاں چھونا, ہم نہ یہاں چھونا, اللہ کو بولو یہاں انتظام کرو. یا اللہ میری قوم کو پانی ہونا گا. اللہ بولتا تمہارے ہاتھ میں کا عصا لے کو پتھر کو مارو, 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں, پانی پلان.
भूख लग रही, मूसा अल्लाह बोलो खाना दोगे ना, गवां छोड़ का ऐसो ले हमें, कलमा पढ़ का ऐसो, नखरे इतने नखरे, मन्ना सलवा आसमान से अल्लाह उतारा, हर चीज अल्लाह इनकी पूरी करते गया। अब अल्लाह इनको आजमाने का वक्त आ गया। अल्लाह ताला ने कहा, ऐ मूसा तुम्हारी कबीले से कहो सामने कौम जब्बारीन है, इनसे जंग करना, जान की कुर्बानी देना, जान की बाजी लगाना, बोलो जान की बाजी लगाओ कहना, आगे बढ़ो कहना। उन्होंने क्या बोले, जे हमें मारा मारी करने आई नहीं, जे हमने ये कतरा कतरी करने कटने को से हमने बुलाना नहीं तुम्हें, इज़हब अंता व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना खाइदुन। क्या बोले उन्होंने, मैं तुम्हारा रब जाकर लड़ो और तुम्हारा रब जाकर मरो, तुम्हारा जब रब जाकर झगड़ा करो, हमें आराम से यहां बैठ को तमाशा देख ले, बैठ हमें आराम से यहां बैठती। सूरह माइदा की 24 नंबर आयत में इनके जुमलों को अल्लाह नकल करता कुरान में, इज़हब अंत व रब्बुका फकातिला, तुम्हारा रब जाकर लड़ो, इन्ना हाहुना खाइदुन, हम यहां आराम से बैठेंगे। जान की बाजी लगाने, अल्लाह के राह में कुर्बानियां देने, पीछे हटे नारा खा। अल्लाह क्या करे, इनको सजा दिया, 40 साल तक एक कीचक वादी में भटकाया, वादी तय बोलती उसे, वादी तय में एक वादी में 40 साल तक भटकाया बनी इस्राइल को। ये 40 साल में मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को इस कबीले का नबी बनाया गया। अब जैसे ही नबी बने 40 साल तक सुबह में सफर करे तो शाम में कहां से निकले रहते वहां चाहते हैं, फिर सुबह में रात में सफर करे, सुबह में कहां से निकले रहते वहां चाहते। एक कीचक वादी में अल्लाह भटकाया, उस वादी से बाहर नहीं निकाला इनको। 40 साल के बाद यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के नबी बने, वही जुमला अल्लाह बोला, तुम्हारे कबीले को बोलो अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी दो करना, कौम जब्बारीन से लड़ो करना, अगर नहीं लड़े यहां इनको गाड़ को रख डाल। तो यूशा बिन नून, मेरे कबीले वालों चलो अल्लाह के रास्ते में जान की कुर्बानी देने के लिए आगे बढ़ो। नहीं आगे बढ़े, डर रहे थे, अब भी हमें नहीं आते बोले, अल्लाह यहां गाड़ डालता। कैसा जाना, हमें कैसा जाना, हमारे अंदर हिम्मत नहीं ना। अब ये मैटर यहां खड़ा करको, वो मैटर कौन सा, हिस्कील अलैहिस्सलाम की कौम आगे के दरवाजे से निकलने का छोड़ को पीछे के दरवाजे से निकल को भागे थे ना चोरा, अल्लाह उनको एक साथ जमीन फाड़ को अंदर जो धसाया था, यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के कबीले के आंखों के सामने ये मुर्दा कर को जमीन में गाड़े वाले को दोबारा जिंदा करे अल्लाह। कुरान मजीद सूरह बकरा 240 पर 3 नंबर आयत में ही अल्लाह कहता है, सुम्मा अहयाहुम, जिन लोगों को हमने जमीन में धसा को गाड़ा कर मारे थे, इनको कई मुद्दतों के बाद दोबारा इसी जमीन से हमने इनको जिंदा किया। यूशा बिन नून के कबीले वाले डर को मर रही, हमें आगे नहीं गए तो जान की बाजी नहीं दिया तो अल्लाह हमने क्या करता कि अल्लाह उनको जमीन से उठाया, जिंदा कराया। उन्होंने बोले, अरे नालायक, हाँ ये गलती हमें करे रे, अल्लाह हमेशा वास्ते गाड़ डाला था रे, हम ना तुम्हें करो न को, अल्लाह ने तो तुमने भी गाड़ डालता। देखो मौत से डरो न को, मौत अल्लाह के इख्तियार में, जान जाना है कैसा भी अल्लाह की रजा की खातिर कुर्बान करो, या जान बचाते हैं मुनाफिकान के सर का बुज़दिलान सर का डर को मरो न को, ऐसा बोले। फिर अल्लाह ताला उनको मौत के घाट उतार डाला। अल्लाह बोलता, इन्ना अल्लाह लज़ू फज़लिन अलन नास, हम बंदों पे अपना फजल नाजिल करते हैं, वलाकिन अक्सर अन्नास ला यशकुरून, लेकिन अक्सर लोग अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करते। अब ये मंजर देखने के बाद इनके अंदर हिम्मत आई, चलो अब हमें लड़ना, नहीं का तो अल्लाह हमने गाड़ को रख डालता। अब इन्होंने लड़ने के वास्ते गए बैतुल मक़दिस फलस्तीन, यहूदियों से, उन काफिरों से जंग करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम के कबीले वाले लड़े। चारशंबे की शाम जंग शुरू हुई, जुमेरात जुमा, 2 दिन की घमासान जंग के बाद जुमा का सूरज डूब रहा था। हफ्ते का दिन यहूदियों का मुकद्दस दिन, इतवार का दिन नसरानियों का मुकद्दस का दिन। अल्लाह तबारक व तआला अगर वो जुमा के दिन का सूरज डूब जाता, उन काफिरों के लिए एक दिन जो उनका मुकद्दस दिन है, जंग स्टॉप हो जाती। 2 दिन की घमासान के जंग के बाद
वो जंग जीतने के करीब पहुंच गए थे, मुसलमान बैतुल मक़दिस फतह करने के करीब पहुंच गए थे, लेकिन मसला क्या था, अगर यह सूरज डूब गया जंग रुक जाती। ऐसे मौके पर हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, ये डूबते हुए सूरज को थोड़ी देर के लिए रोक ले, हम जंग जीत लेंगे। अगर ये डूब गया, इतवार के दिन जंग शुरू होगी, जब तक ये लोग अपनी फौज की तादाद बढ़ा लेंगे। अल्लाह ने कहा, ऐ यूशा, तू हुक्म दे सूरज को, ये सूरज मैं अपने कुदरत से रोक लूंगा। यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ढलते हुए सूरज को इशारा करके बोले, ऐ सूरज, तू अल्लाह का ताबे है, अल्लाह के हुक्म से तुलू होता गुरूब होता है। मैं अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं कि तू थोड़ी देर के लिए रुक जा, उतनी देर तक जितनी देर तक हम जंग जीत ना ले, अल्लाह के हुक्म से तू थोड़ी देर के लिए रुक जा। यूशा बिन नून ने कहा, वो सूरज डूबने वाला थोड़ी देर के लिए आसमान में रुक गया। दुनिया में बेशुमार नबी आए, किसी नबी ने डूबते हुए सूरज को नहीं रोका सिवाय यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के। सही बुखारी किताबुल मगाजी की ये रिवायत, सही बुखारी की हदीस है, डूबता हुआ सूरज रुक गया, जंग जीत लिए, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला सूरज को डुबाया। इस हदीस में इबरत क्या, अगर मुसलमान अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाए, जमीन और आसमान, सूरज और चांद को अल्लाह हम मोमिनों के ताबे करके छोड़ देगा। लेकिन अगर हम जान की बाजी ना लगाए तो अल्लाह ताला हमारी हालत जलील से जलील करके रख देगा। यह है अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देने का जज्बा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, जिन जानवरों की अल्लाह ताला कुर्बानी करने का हुक्म देता है वो ऊंट, गाय, बकरा, छेला, ये 4 जानवर। ये कई को हिरन भी हलाल है, हिरन की कुर्बानी कहीं को अल्लाह नहीं बोलिया। घोड़ा हलाल है, घोड़े की कुर्बानी का अल्लाह कहीं नहीं बोलिया। मोर हलाल है, मोर की कुर्बानी अल्लाह कहीं नहीं बोलिया। और इसी तरह जंगली भैंस वो हलाल है, उसकी कहीं को नहीं बोलिया। नहीं, जिन जानवरों की कुर्बानी अल्लाह बोलिया उन्हीं जानवरों की कुर्बानी देना, उनके अलावा किसी और जानवर की कुर्बानी जायज नहीं। हलाल जानवर में गैरत ज्यादा रहती। गैरत बोले तो मेरी बीवी को कौन भी दूसरा नहीं देखना, मेरी बेटी के साथ कौन भी छेड़खानी नहीं करना, इंसान के अंदर गैरत जाग जाती है। हलाल जानवरों के अंदर गैरत बहुत रखा, बरकत बहुत रखा अल्लाह। रोजाना दुनिया में 4 अरब से ज्यादा जानवर कटती है, रोजाना 4 अरब से ज्यादा पूरे वर्ल्ड में। बकरे, ऊंट, गाय, ये 4 अरब से ज्यादा कटती है। तुम्हारे आंध्र प्रदेश में देख लो, हजारों के नहीं लाखों के जानवर रोजाना कटते हैं, फिर भी कांत भी देखेंगे बकरियां के झुंड दिखती है, हमना गायों के बड़े बड़े झुंड दिखती है, बड़ी बड़ी फौज दिखती है। कुत्ते को कौन भी काट को खाते नहीं, रोजाना हजारों के कुत्ते काटते नहीं, फिर भी कुत्ते कांकी एक नजर आती। हजारों के सवों के कुत्ता के झुंडा नजर नहीं आते। रोजाना हजारों लाखों बकरे करती, झुंड बकरों के नजर आती, गायों के झुंड नजर आती। क्यों? इस नस्ल के अंदर अल्लाह बरकत रखा, कुत्तों की नस्ल में बरकत नहीं रखा। जबकि कुत्ता एक बार कुत्ती जनी तो 6 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे जनती। बकरा साल में एक बार जनी तो बकरी 21 बच्चा जनती। एक बकरा साल में जनने वाली बकरी कुत्ती एक मर्तबा जनी तो 8-8, 10-10 बच्चे जनती। कहां कभी देखो रोजाना हजारों ने लाखों बकरे करती, झुंड बकरों की तादाद नजर आती। रोजाना हजारों लाखों के कुत्ते नहीं करते, कुत्तों की झुंड कहीं नजर नहीं आती। क्यों? इस फसल में, इस नस्ल में अल्लाह बरकत नहीं रखा। कुत्ते खाने वाले के अंदर वो गैरत नहीं है, खिंजीर सुअर खाने वाले के अंदर वो गैरत नहीं है, जो बकरा, गाय, ऊंट खाने वाले के अंदर वो गैरत रखा। बकरियां अपनी बकरी को कौन तो भी क्रॉसिंग करने आया तो 2 बकरे हुड्डी खेल को जान से मार डालती। मेरी बकरी को तो टच करे, मेरे सींगों से मार को तुझे जान से मार डाल, तू मेरी बकरी टच नहीं करना। एक मुर्गी तुम्हें घर में पालो, आंगन में चरने को से छोड़ो, वो मुर्गी को दूसरा मुर्गा ठोंग मारने आया तो ये मुर्गा मार को भगा डालता। मुर्गे के अंदर वो गैरत रखा अल्लाह। वैसा वो मुर्गा खाने वाले को, वो बकरे खाने वाले के दिल में भी वो गैरत अल्लाह रखा। अमेरिका में जाके देखो, ईसाइयां सुअरों को काट को खाती, उनके अंदर जर्री भी गैरत नहीं। छोटे छोटे कपड़े पहनने को उनकी जोरू,
सीना दिखे सरकार, राना दिखे सरकार, छोटे स्कट्टा पहनले को क्लब्बा में जाती, इसकी जोरू को उन्हें ले को क्लब्बा में नाचते रहता, उसकी जोरू के बाहों में उन्हें हाथा, इसे गैरत भी जागती नहीं, उन्हें कांते भी दूसरे के साथ गई तो इसे जर्रा भी गुस्सा भी आता नहीं। क्यों? खिंजीर को खाते नहीं। खिंजीर जानवर में गैरत नहीं, खिंजीर खाने वाले में भी गैरत नहीं। जो हलाल जानवर खाती इसमें गैरत। अच्छा, हलाल में बरकत कहीं रखा, हलाल जानवर में अल्लाह बरकत कहीं रखा, इसका बहुत बड़ा फार्मूला है। हलाल जानवर रात में जल्दी सो जाता, जुगाली देते देते रात में जल्दी सो जाता, सहरी के वक्त जाग जाता। गाय रंधे, ऊंट रंधे, बैल रंधे, बकरा रंधे, सहरी के वक्त जाग जाता, सहरी के वक्त जागता। ये सहरी का वक्त कौन सा? फजर का, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें नाजिल होने का वक्त। रात में जल्दी सोता यह जानवर, सहरी के वक्त जागता, बरकतों के वक्त जागता। इसीलिए इस नस्ल में अल्लाह खूब बरकत रखा। कुत्ते को देखो रात भर जागता, सहरी के वक्त सो जाता। जब बरकत उतरते रहती अल्लाह की, वो टाइम पर दलिंदर सो सर का सोता। इसीलिए कुत्ते की नस्ल में, सुअर की नस्ल में अल्लाह बरकत नहीं रखा। अल्लाह ताला हलाल जानवरों में बरकत रखा। ये हलाल खाने वाले में भी अल्लाह गैरत रखा, और इस गोश्त में भी अल्लाह सेहत और बरकत रखा। खैर मेरे दीनी और इस्लामी भाई, अब आइए कुर्बानी के चंद जरूरी अहकाम और मसाइल मैं आपके सामने बयान करूं। वो क्या है? कुर्बानी का जानवर जो खरीदेंगे आप, वो पैसा हलाल का रहना। इनके उनके कोम्पे डुबा को, मुंह मार को, ईसा की टोपी मूसा के सिर पर, मूसा की टोपी ईसा के सिर पर डाल को, इनको उनको चुन्ना लगा को कमाए से पैसे नहीं रहना। हलाल मेहनत के खून पसीने के पैसे रहना। वो पैसा से तुम्हें जानवर खरीद को कुर्बानी करे तो अल्लाह कबूल करता, नहीं का तो हरगिज हरगिज कबूल करता नहीं। लोग चोरी के पैसे, हड़प कर लिए सो पैसे, इनके उनके प्रॉपर्टी डुबाए सो पैसे लेको हज को भी गए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, वहां कहता भी पुकार लेंगे। अल्लाह क्या बोलता? ला लब्बैक वला सादैक, तेरा आना भी मुझे मंजूर नहीं, तेरा लब्बैक लब्बैक पुकार ले खड़ना भी मुझे मंजूर नहीं। जा तेरा लब्बैक तेरे मुंह को पर मार दूंगा तो अल्लाह मार को वहां का वहां भगा डाल। अल्लाह को मंजूरी हलाल पैसा से खरीदे सो जानवर, नंबर एक। नंबर दो, अच्छा तुम्हारी कमाई हलाल की, तुम्हारे पैसा हलाल का, जानवर हलाल का, हलाल तरीके से खरीद लेकर, नियत खालिस अल्लाह को खुश करने के वास्ते कुर्बानी रहना, लोगों को दिखाने के वास्ते नहीं रहना। मेरा जानवर इतना बड़ा, मैं ऐसा देने का, अगर नियत में रियाकारी आ गई, हलाल पैसे लाखों के तुम्हें खर्चा कर को भी फूटी कोड़ी के बराबर अल्लाह के पास सवाब नहीं कमाते। नियत में खतरा तो झोली में फतरा, अल्लाह ताला रत्ती बराबर भी अजर नहीं देता। नियत अल्लाह को राजी करने के रहना, हलाल पैसों के रहना। नंबर तीन, ये जो जानवर आप खरीदेंगे, चार ऐबों से पाक रहना। लंगड़ा नहीं रहना, टांग टूट को नहीं रहना, और बिल्कुल दुबला पतला नहीं रहना, जिसके हड्डियों में गूदा ना हो, पेट जाको पीठ को लग लिया रहता, हड्डियां का कुप्पा उठले गया रहता, सस्ते में मिले रहता, उठा ले कह रहता, वो चलता नहीं। नंबर चार, अंधा नहीं रहना, आंख फुटको नहीं रहना। और नंबर चार, वो जानवर बिल्कुल बीमार नहीं रहना, खारिश लगले को, खुजली लगले को, फोड़े पुंसिया उठ को बीमार नहीं रहना, सेहतमंद रहना, मोटा ताजा रहना, लंगड़ा नहीं रहना, अंधा नहीं रहना, बिल्कुल ऐबों से पाक। अच्छा, इनमें सिंग टूटा हुआ नहीं रहना, कान कटा हुआ नहीं रहना। आजकल गवर्नमेंट वाले वो कान में टैग मारती है, पीला टैग, गवर्नमेंट की तरफ से नंबर का टैग मार, वो टैग कोई ऐब नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा काट डालती है। हमारे गाया निशानी के तौर पर कान कटा हुआ बकरा रंधे, गाय रंधे, ऊंट रंधे नहीं चलता। बकरा 1.5 साल मुकम्मल कर को 2 साल में पड़े रहना, गाय 2 साल मुकम्मल कर को 2.5 साल में पड़े रहना, ऊंट 5 साल मुकम्मल कर को 6ठे साल में पड़े रहना। तो इन्हों दांत, दूध के दांत झड़ा को दही के दांता निकाले रहते, वो जो दही के दांता असली निकाले रहते ना, वो दांत वाले जानवर ही चलती सो नहीं कहते। मौलवी साहब ये देखने को से बड़ा दिख रहा है, ये कर सकती क्या? अरे उसके बाला नहीं काटे रहते, देखने मोटा दिखते रहता, लेकिन नहीं चलता। जिज़ा नहीं चलता। कब नहीं चलता? पूरे हिंदूपुर, पूरे आंध्र प्रदेश में तलाश है तो दांत वाला नहीं मिल रहा, वैसी सूरत में चलता। मार्केट में जाकर देखे दांत वाले बल्लक मिलती, लेकिन ज्यादा पैसे ना आकर तो इन्हें कम पैसा का लाने को वास्ते बाला मोटे हैसो ले काट देता, वो चलता नहीं। दांत वाला जानवर रहना, चाहे गाय रंधे, बकरा रंधे, ऊंट रंधे, दांत वाला जानवर रहना। और कुर्बानी के पास लोग ला को काटने के बाद 3 हिस्से करती, एक हिस्सा हमारा, एक हिस्सा गरीबों को, एक हिस्सा खबाबन टंगाने के वास्ते।
तीन कुप्पे कर डालते, ये जायज नहीं, कौन सी हदीस में भी लिखो नहीं। कुर्बानी के जानवर के 3 हिस्से कर को तुम्हें बांटा बांटी करो, ये कौन सी हदीस में भी नहीं। हाँ, 3 हिस्से की एक बुखारी में हदीस है, वो हदीस किसी और के लिए है, इन्हें कुर्बानी के 3 कुप्पे में लाको फिट कर डाला। वो हदीस कई के बारे में है, अल्लाह के रास्ते में एक आदमी ज़कात निकालता था। अल्लाह उसके खेत को गैब से सैर करता, रास्ते में जाते जाते गैब से आवाज सुनता है, ऐ बादलों, फला इंसान के खेत को सैर करो। इन्हें देखा ऊपर बादला आजू बाजू से जमा हुए बड़े बादला, और वह सब एक पथरीली पहाड़ पर बरसे, वहां से पानी का नाला होते होते एक ही आदमी के बगीचे में पूरा पानी आ गया। इन्हें पूछा किसका बगीचा, ये वही नाम था जो बादलों से उसने सुना था। कहां रहता इन्हें, अरे वहां हिंदूपुर में रहता। सीधा गया मिलने, भाई तेरे तू क्या भैया नाम वाला, तुम्हारे अब्बा का नाम ये क्या है, तू क्या ऐसा करता मेरे भाई, अल्लाह ताला तेरे बगीचे को बादलों से हुक्म देकर तेरे बाग को सैर कर रहा, तेरे अंदर क्या है। उन्हें क्या बोला, जब भी मेरी खेत की फसल निकलती 3 हिस्से कर तू, मैं एक हिस्सा मेरे वास्ते खाने, एक हिस्सा गरीबों को बांटने ज़कात निकालने, और एक हिस्सा आइंदा साल बीज बोने। वो हदीस में जो 3 कुप्पे हैं, वहां के 3 कुप्पे ला कुर्बानी के गोश्त के 3 कुप्पे बना को बिठा डाले लोग, जबकि कुर्बानी के 3 हिस्से करने का किसी हदीस में नहीं। अब एक घर में मर्द जरूर रहती, बड़ा गई की बैल की देती, 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल गोश्त पड़ता। अब 3 क्विंटल 1.5 क्विंटल पड़ा, समझो 3 कुप्पे करे 50 केजी, मर्द जरूर नहीं खा सकते उन्होंने, क्या करेंगे, जत्ता होना काट लेना, बाकी का सब गरीबों को बांट डालना। अच्छा, बांटने के भी हिस्से हैं उसमें, बांटने का भी एक तमीज है। बांटना कैसा बांटना, अदला बदली कर ले नहीं बांटना, तुम्हें हम ना दो हमें तुम ना देती। उन्हें भी कुर्बानी दे रहा था, इन्हें भी कुर्बानी दे रहा था, इन्हें चुन चुन को उनके घर को कुर्बानी देता जो इसे कुर्बानी का गोश्त बेचता। उसका घर का आया क्या, नहीं आया नहीं, दोनों को से उसके घर का आया तो उसे ले जग दो। उन्हें कोसा लाख दिया बकरे का, पहले भेजो उसे, बकरे का लेने का, बड़े का देने का, यानी उनके घर से इनको, इनके घर से अरे ये नन्हे चाहिए, ये क्या रस्म समझी क्या तुम्हें गोश्त की अदला बदली कर लेने का। ये बांटने का असल गरीबों का हिस्सा, ये जो कुर्बानी नहीं दे रहते, जो गरीब रहती, उनको लज्जत देना, कुर्बानी करे सोले को नहीं देना। ये जो बांटने का है, कुर्बानी नहीं करे सोले को देना नहीं, अदला बदली। उन्हें हमारी शादी में लिफाफा रखा तो नाम लिख कर रख लेती, उसकी शादी में हमें लिफाफा रखना। उन्हें आया था खाली खाक डल्या क्या भी दिया नहीं, उसके शादी में भी क्या भी लिफाफा रखने का नको, उसमें भी अदला बदली। अस्तगफिरुल्लाह, ये नहीं है हदीस में, गोश्त में अदला बदली, ये हिस्से में अदला, ये नहीं है। जो नहीं कर रहती उनको गरीबों को लज्जत देना। अच्छा, बाटा करते स्टंपो, अल्लाह सूरे माइदा की 90 पर 2 नंबर आयत में अल्लाह बोलता, 4 पारे की पहली आयत में, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह के रास्ते में नेकी अल्लाह उस वक्त तक तुमने नहीं देता जब तक तुम अल्लाह के रास्ते में वो चीज दो जो तुम्हारे यहां मकबूल है, जिसे तुम पसंद करते हो। अब हमें क्या करती, जैसे बकरा काटे, कलीजा अंदर ले जा रहे, गुर्दा अंदर ले जा पहले, तिल्ली अंदर ले जा पहले, वो फेफड़े पहले अंदर ले जा। अब क्या बाटन डालना, गोबर की बोटी बदबुरी बासुट डालो, गरीबंग दाल, नलियां बड़े बड़े गुद्दा के अंदर ले चल, ये पाए के नलियां इसमें गुद कम रहता, दाल गरीबों के बाटे में डाल, ये हड्डियां चूस को खाने के अंदर ले चल, ये हड्डियां में गुद भी नहीं रहता, कहेगा रहता, चुपके शेरवे में दाल गरीबंग दाल। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा चल रहा, मैं ऐसा बना को बोल रहा हूं, समझो ना को, ऐसा दुनिया में रियल पिक्चर चल रहा है। अल्लाह को ये तुम्हारी कुर्बानी पसंदिश नहीं। अच्छा हम ना, खराब तुम ना, कौन जी बोला, अजी जो तुम्हें अपने लिए पसंद करती वो गरीबों को दो जी, गरीबों को दो मेरे भाई, वो कुर्बानी अल्लाह पसंद करता। सो कलीजा का तो इन्हें कहते, किडनी का तो इन्हें कहते, गुर्दे का तीसरे कहते, वो नहीं खाने आने की बोटी, छिछड़ा, वो गोबर की पोट, वो सब उनको कहते। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह कबूल करता, समझी, अल्लाह कबूल कर। वत्ता हमें बड़े बड़े राना फ्रिज में घुसड़ रहे, उन्हों आती काट को खलेंगे 8-8 दिन, अरे रख ले खाओ भाई, लेकिन गरीबों को भी दो भाई, गरीबों को भी दो। गोश्त जखीरा करने का है, खबामा डालने का है, दावत खाने का है, खिलाने सब कुछ है, गरीबों का हक पहुंचने के बाद। और इसी तरह
कुर्बानी के जानवर को अगर खसी कर डाले, खसी मतलब उसकी मर्दांगी निकाल को उसके कपूरियां को दबा डाले, अगर उसे खसी कर डाले तो वो कुर्बानी ऐब वाली नहीं है, अफजल है। अल्लाह के नबी देते थे खसी वाले कुर्बानी, खसी वाले जानवर कोई ऐबदार नहीं है। इसी तरह बाज लोग क्या करती, एक जानवर लाती गई, उसमें क्या करती, दो हिस्से हमारी तरफ से, दो हिस्से मरहूम अम्मा अब्बा की तरफ से, दो हिस्से मेरे बच्चों का अकीका नहीं हुआ, अकीका का कुर्बानी भी उसमें च, अकीका भी उसमें च। अस्तगफिरुल्लाह, कैसा जी होता। एक काम करो, 10वें जिलहिज्जा को तुम्हारी बेटी का निकाह रख लो, निकाह रख ले, क्या बोलो, मेरी बेटी के निकाह का जानवर भी ये च, कुर्बानी भी ये च, अकीका भी ये च। एक तीर तो तीन निशानियां, एक तीर में 3 निशानी। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, ऐसा नहीं होता। अकीका अलग ही च, कुर्बानी अलग ही च। अकीका कुर्बानी मिक्स करे सर का नहीं। अकीका बकरा बकरी छेला छेली ये 4 जानवरा में देना सो, ऊंट से गाया के हिस्से से अकीके नहीं होते। अकीके में 2 जान देना, 2 हिस्से दिए तो भी अकीके नहीं होते। अकीके को बड़ा जानवर इस्तेमाल नहीं करना और अकीका कुर्बानी एक में नहीं देना। बाज लोग क्या करती है, मेरी बेटी का निकाह, मेरे बेटे का वलीमा, अब लाओ रे 10 बकरे, किसके किसके अकीके नहीं हुए, हम अम्मा का, फुप्पू का, नानी का, दादी का, काटो रे। अब यहाँ काटने का हताज खाते, कैसा भी बकरे काट को लोगों को खाना खिलाने का दावत, अकीके काटो रे। मेरे भाइयों, निके में बकरे काटती ना, उसमें अकीके नहीं होते। वलीमे में काटे जाने वाले बकरों से अकीके नहीं होते, मंगने में काटे जाने वाले बकरों से अकीके नहीं होते। पहली बात, मंगनी नहीं करना, मंगनी के नाम पर ऐसे फजूल खर्ची, ये अकीके अलग जानवर ले को काटना। और इसी तरह अगर किसी मां को आपने ज़बा किया, ऊंटनी, गाय, बकरी, मालूम नहीं था उसके पेट में बच्चा निकल गया, काटने के बाद उसे जनीन बोलती हदीस में, उन्हें मर को पैदा हुए तो भी हलाल, मां के ज़बा करने के साथ बच्चा भी ज़बा हो जाता, वो खा सकती, वो अच्छा गोश्त हो, बहुत अच्छा गोश्त हो, सेहत के लिए, गुड़ियां दर्द के लिए बहुत अच्छा हो। बाज लोग छी कैसा है ना, बात जिगिड़ जिगिड़ निकाल छटोरे, नहीं, कभी भी मायूब नहीं समझना, वो जनीन है, उसे खा सकती, लेकिन जानबूझ को हामिला जानवरों को नहीं ज़बा करना। मालूम नहीं था, काटे पेट में बच्चा निकला, खा सकती। और इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कहा, मैयत के तरफ से कुर्बानी करना चाहे कर सकती, लेकिन उसके चंद कंडीशन है। क्या है, जिंदे को छोड़ को खाली मुर्दे की तरफ से देना वो जायज नहीं, पहले जिंदे बाद में मुर्दे, मुर्दे की तरफ से स्पेशल में एक जानवर ला को काट दूं वो जायज नहीं। एक ही गाय में चंद जिंदों के हिस्से, चंद मुर्दों के हिस्से रख ले को काट सकते। अगर मुर्दों के तरफ से आपने चंद हिस्से लिए मरहूमीन की तरफ से, तो वो गोश्त आप नहीं खाना, मुकम्मल गरीबों में बांट डालना, क्योंकि वो कुर्बानी सदक़े में शुमार होती, सदका मैयत की तरफ से जायज है। और इसी तरह ज़बा करने से पहले छुरी तेज कर लेना, एक जानवर के आंखों के सामने दूसरे जानवर को ज़बा नहीं करना, क़िबले की रुख जानवर को लिटाना, और आप छुरी को अपने हाथों से ज़बा करना। मौलवी साहब को बुलाओ, भाई हम ना जान कहीं को घबराता, खून देखे तो जान डरता, ये सभी नहीं, आप अपने हाथ से ज़बा करना। औरत भी ज़बा कर सकती, मर्द बाना ज़बा कर सकता। ईद का दिन, ईद के बाद 3 दिन, अय्याम तशरीक, 11 जिलहिज्जा, 12 जिलहिज्जा, 13 जिलहिज्जा के मगरिब का सूरज डूबने तक, ईद का दिन मिला को कुल 4 दिन कुर्बानी के, ईद का दिन छोड़ को 3 दिन कुर्बानी के। ईद के बाद 9 जिलहिज्जा की फजर की नमाज से तकबीरात बुलंद आवाज से पढ़ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, 3 बार हर नमाज के बाद। 9 जिलहिज्जा की फजर से 13 जिलहिज्जा के असर की नमाज तक पढ़ना तकबीरात। और जानवर ज़बा करते वक्त बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिनका वलका, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिनका वलका मिन्नी व मिन अहली बैती बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। आय अल्लाह इसे कबूल कर ले, मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर बोलकर ज़बा करना। मर्द पाना भी कर सकता, औरत भी कर सकती, दिन में भी ज़बा कर सकती, रात में भी ज़बा कर सकती। कब? 10 जिलहिज्जा से 13 जिलहिज्जा की मगरिब तक, 24 घंटे में कब भी ज़बा कर सकती। और इसी तरह आप लोग जानवर ज़बा करने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, ईद की नमाज से पहले जानवर ज़बा नहीं करना, ईद की नमाज पढ़ने को आको जानवर ज़बा करना। और जो कुर्बानी देने वाले हैं
उन्होंने बाल नाखून चांद देखने से पहले जो काटे हैं, ईद की नमाज पढ़ को बिस्मिल्लाह बोल के बाल और नाखून निकाले तो अल्लाह उनको कुर्बानी का सवाब देता। जो कुर्बानी नहीं दे रहे उन्होंने भी बाल नाखून निकाले तो उनको भी कुर्बानी का सवाब देता। लेकिन अफजल कुर्बानी देने वाले के वास्ते, जो कुर्बानी नहीं दे रहे उन्होंने रख भी सकते नहीं भी रख सकते। और आखिर में कुर्बानी के जो खाल होती है, चमड़ा, खसई की मजदूरी में उठा को नहीं देना, मजदूरी खसई को अलग से देना। और वो जो खाल है, सूरह तौबा की 60 नंबर आयत में 8 मसारिफीन ज़कात के बारे में अल्लाह लिस्ट गिनाया, उनमें से किसी को भी आप वो खाल उठा के दे सकते हैं। कुर्बानी का जानवर मुसलमानों को देना, अगर आप किसी गैर मुस्लिम को भी देना चाहें दे सकती हैं, कोई हरज की बात नहीं। और इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि इंसान कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर करना, रब की रजा इसके अंदर शामिल हाल रहना। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला ईद कुर्बान जैसी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को कुरान और हदीस के मुताबिक बजा लाने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। जो लोग इस्तिताअत रखकर भी कुर्बानी जानबूझकर नहीं देते, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा उसे हमारी ईदगाह के करीब आने का भी हक नहीं। हम ना दुनिया के शॉपिंग करने पैसे हैं, मंगने करने को वास्ते लाखां के पैसे हैं, कुर्बानी करने पैसे नहीं, 25,000 का एक बकरा लाने पैसे नहीं, 5,000 का एक हिस्सा मिलने भी पैसे नहीं। यहां बहाने पैदा होते, वहां मंगना करने, वहां शुक्राना करने, अभी दुनिया के रस्मा करने, वहां पैसे की कमी नहीं आती। पैसे नहीं तो भी कर्जा ले लेकर आपको कर डालता, लेकिन यहां करने को ऐसा डरता। कर्जा ला को कुर्बानी करना चाहे तो भी कर सकते, लेकिन सूद का कर्जा नहीं लेना, हाथ बदल कर्जा लेकर कर सकते। अल्लाह हम तमाम को कुर्बानी के अहकाम मसाल अच्छी तरह समझने, उसे अल्लाह और उसके अल्लाह की रजा की खातिर उसे बजा लाने की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस के मुताबिक हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।